ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ BSF ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈस कांफ्रेंस की गई है, की विचार ने? देखिए, सीधे तौर पे अगर कहें तो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, मुझे पता है कि आप सब आज क्यों आए हैं, आप सबको क्या उम्मीद है और आप सब क्या क्यास लगा के रखे हैं। जी हाँ, मैं अपनी पार्टी अनाउंस करने वाला हूं पर आज नहीं करूंगा। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि वो आज अपनी पार्टी अनाउंस नहीं करेंगे और इसका उन्होंने सीधा कारण ये दिया है कि उनकी पार्टी का भी नाम डिसाइड नहीं हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे पास अपनी जल्दी अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करूंगा, पर पहले एक बार मुझे पता तो चल जाए कि मेरी पार्टी का नाम क्या है। इलेक्शन कमीशन से सीधे तौर पर बोला कि उनकी बातचीत चल रही है, जिसके बाद उन्हें जल्द ही उनका नाम फाइनल होगा और जिस दिन नाम फाइनल होगा वो आम जनता के बीच में जाके वो अनाउंस करेंगे और अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो कह गए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे साथ कई नेता ऑलरेडी हैं बातचीत में, चाहे हम बात करें कि वो बीजेपी के हों, चाहे फिर हम बात करें कांग्रेस के हों, चाहे वो अकाली दल के हों, सबसे उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मेरी बातचीत चल रही है और मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं, जब मैं अपनी पार्टी अनाउंस करूं तो मेरे साथ आएंगे। तो ये उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी। भले ही आज पार्टी अनाउंस नहीं की, पर वो पंजाब का सियासी माहौल जरूर गर्म कर गए। उसके बाद चलते हैं कि उसके बाद बातचीत जो रही कहीं ना कहीं बीएसएफ के मुद्दे पर रही। बीएसएफ मुद्दे से अगर हम शुरू करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एग्जाम्पल दिए कि 4.5 साल वो सीएम है। टोटल अगर हम बात करें कि 9.5 साल टोटल वो सीएम रह चुके हैं लगातार, और उन्होंने बताया कि वो एज ए सीएम उन्हें सब पता है कि बॉर्डर स्टेट में क्या हालात होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और किन किन चीजों पे डिस्कशन करने की जरूरत है। तो उन्होंने मुद्दा कहां से स्टार्ट किया, मैं आपको बता, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब आज की जनरेशन, आज की इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, आज की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले ये सब नहीं था। जब शुरुआत में बॉर्डर बीएसएफ के जो हम कहते हैं कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया, उसके ऊपर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले शुरुआत में बनती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ टनल्स हुआ करती थी, बॉर्डर के इर्द गिर्द ही सामान आया जाता था, चाहे लांघने की कोशिश की जाए या टनल्स के जरिए सामान भेजने की कोशिश की जाए। तब ऐसा होता था कि बीएसएफ कार्य क्षेत्र 15 किलोमीटर सक्षम था, पर उनकी तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यह की गई कि अब जब नई ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, खुद उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि पहले जहां से 3-4 किलोमीटर के अंदर था, अब 31 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर, एक पंजाब के अंदर 31 किलोमीटर पे ड्रोन मिला है।
तो उन्होंने सीधे तौर पे सवाल कर दिया कि ये 31 किलोमीटर के अंदर ड्रोन क्यों आया था। ये तो सीधे तौर पे पता ही है कि स्लीपर सेल्स को कोई सप्लाई देने है, कि हालांकि ये जी एक ड्रोन मिल गया, पर इसके अलावा कितने और ड्रोन आ चुके हैं जिनके बिल्कुल। बारे में हमें पता नहीं है। ड्रोन्स पता चलते हैं, हमें मिलते हैं, हम उनका तहकीकात करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाए। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि पंजाब पुलिस पूरी तरह ट्रेंड है, उनकी कार्य क्षमता पे उन्हें कोई भी सवाल नहीं है। पर उन्होंने सीधे तौर पे यह भी बोल दिया कि पर पंजाब पुलिस इस मसलों को हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि जो काम बीएसएफ करती है, जिस चीज की ट्रेनिंग बीएसएफ को मिलती है, तो वो अपनी चीज की स्पेशलिटी है उनकी, चाहे वो फिर चाहे स्पियोनेज की बात करें, चाहे जो हथियार बाहर से आ रहे हैं उसकी बात करें, चाहे सिलेबस आइडेंटिफाई करने की बात करें, ये सब काम बीएसएफ इस चीज की ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो ये काम उनका बनता है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं खड़ा होना चाहिए कि इतना बड़ा क्षेत्र जो सिर्फ 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, तो इसको एज अ टेक ओवर नहीं देखना चाहिए। इसको ऐसे देखना चाहिए कि इससे कार्य क्षेत्र बढ़ाए, पर जो उनको राइट दिए पंजाब पुलिस की उन्हीं के पास है, और इसको किसी तरह का भी टेक ओवर नहीं देखना चाहिए। इसमें खास बात क्या रखें, देखिए कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि जो आज तक ड्रोन्स मिले हैं वो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में मिले। ऐसे 15 किलोमीटर से ऊपर कार्यक्षेत्र होना नहीं, जरूरत नहीं है बीएसएफ को। इस एक स्टेटमेंट और जो हम कहें कि कैप्टन सिंह के स्टेटमेंट, इसने एक भुजाल खड़ा कर दिया कि आप सही कौन है। क्योंकि कैप्टन सिंह एक और बात भी कह गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पंजाब सरकार को अपने सारे फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए, सारे फैक्ट आम जनता के बीच में रखने चाहिए। वो किन फैक्ट्स की बात करें, क्या वो इस फैक्ट की बात करें कि क्या ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ कैप्टन साहब एक कार्य नहीं कर सके। देखिए बॉर्डर सील करने की बात नहीं कर रहे, उन्होंने सीधा और स्पष्टीफाई किया कि मेरे टर्म में भी हथियार आए हैं, मेरे टर्म में भी छानबीन हो रही है, मेरे टर्म में भी ड्रोन्स मिले हैं। उन्होंने चीज सीधे तौर पे हाईलाइट की, जिसके उन्होंने बोला कि जरूरत है कि बीएसएफ का एरिया बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने टर्म में ही बात की थी, तब भी छानबीन चल रही थी, तब भी डिस्कशन की जा रही थी। उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि हर 2 साल बाद ये कदम उठाए जाते हैं, जबकि कैप्टन से पहले ही बोल चुके हैं कि पहले भी मैं ये बात खड़ी कर चुका हूं कि हर 2 साल बाद नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और ये कोइंसिडेंटली ये कह सकते हैं कि अब मेरे हटने के बाद ये कदम उठाया गया, पर हर 2 साल में बीएसएफ रिव्यू करती है कितना कार्यक्षेत्र उनका होना चाहिए, क्या वो बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई थी। पर उन्होंने एक जो स्टेटमेंट जिसमें मैं जोर देना चाहूंगा कि पंजाब सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि सभी जानकारी वो क्लियर करें, कि जो राज कुछ उन्होंने कि कुछ फैक्ट्स जो पंजाब सरकार की तरफ से उनके कहा है कि छुपाई जा रही है, वो आम जनता में निकालने की उनको जरूरत है। वो कौन से फैक्ट्स है, क्योंकि कल अगर हम कहें ऑल पार्टी मीटिंग के जो अनाउंसमेंट की गई थी उसमें ये कहा गया था कि 3 से 5 किलोमीटर के अंदर तक अभी तक ड्रोन मिले। वही कैप्टन सिंह ने सीधे तौर पे एग्जांपल दिया 31 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 गुना या 6 गुना का हम कह सकते हैं कि फर्क है, कि कहीं जहां अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 5 किलोमीटर की बात करता हूं तो लगभग 6 गुना हो जाता है 30 किलोमीटर जो ये ड्रोन मिला। ये एक बीएसएफ के लिए अगर हम कहें कि जो अगर 50 किलोमीटर क्षेत्र दिया गया उस हिसाब से अगर हम कंसिडर करें 31 किलोमीटर का, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये कदम उठाया जाए। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक फैक्ट सिर्फ कैप्टन सिंह के पास है, क्या ये पंजाब सरकार के पास फैक्ट्स नहीं है, क्या 31 किलोमीटर ड्रोन मिला है? अब ये देखना होगा कि इसका जवाब पंजाब सरकार क्या देती है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी जरूरी हो जाएगी कि अगर एक्चुअल में ड्रोन 31 किलोमीटर में मिला है तो इसे पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज किया गया। ये क्या इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया गया कि इससे जो बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया है उसको सपोर्ट मिलता, इसलिए ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। अब ये वेट करना होगा इसके ऊपर पंजाब सरकार क्या बोलती है। जी ਅਮਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ये देखिए इसके ऊपर कैप्टन सिंह ने सीधे तौर पे बोला, जो रूसा आलम को लेके बकायदा ट्वीट वॉर लगातार चलती है, उसपे सीधे तौर पे बोलते हैं कि ये बहुत पेटी पॉलिटिक्स है। उन्होंने सीधे तौर पे उसको एक शब्द में बहुत ज्यादा पेटी पॉलिटिक्स थी
कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज खराब करने के लिए, तो उसको वहीं पे वही आज नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट की बात करते हैं। जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अगर हम कहें कैप्टन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी के दौरान ये ट्वीट आता है कि उन 73 विधायकों ने उन्हें हटवाया। तो उसी पे उन्होंने उसी बोलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी तरह के केपेबल नहीं मानते। उन्होंने बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करके सवाल खड़े करने की आदत है, एक्चुअल में किसी केपेबल नहीं है। वही उनसे एक और सवाल पूछा गया था, क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू का अपोज करेंगे जहां से इलेक्शन, क्योंकि उनके तरफ पहले भी बात की गई थी। जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया था उसी दिन उनकी तरफ से बात की गई थी कि जहां से भी नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उसके ऑपोजिट वो या तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील करेंगे या खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके ऊपर वो आज भी कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे उसको मैं पूरी तरह से अपोज करूंगा। तो इस बात से देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हैं और वो एक परमानेंट स्टैंड लेके खड़े हैं। वही ये बात करते हैं सपोर्ट की, अगर मैं बात करूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों के ऊपर और खुलासे हुए। तो एक बाद में मसला उठा था कि बीजेपी से अलायंस का, तो उस पर उन्होंने एक चीज क्लियर की है। अगर हम क्या, कैप्टन सिंह ने कहा था कि अलायंस की बात नहीं की गई, मैंने सीट शेयरिंग की बात की है कि बीजेपी के साथ किसी के साथ अगर बात करें तो सीट शेयरिंग है कि मैं अपनी तरफ से, मेरी जो पार्टी बनेगी मैं सीट शेयर होगा कि आप अगर हमारे साथ है तो आप यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पर एक चीज उन्होंने कि बीजेपी के साथ उन्होंने बोला सीट शेयरिंग हो सकती है, पर एक चीज उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दी। बिल्कुल मैं कहना चाहना कि जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ है। जी देखिए, अमित शाह से मुलाकात के पहले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब दिया गया उनसे कि लगातार मीटिंग्स पहले भी होती रही है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम कहें सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर से लगातार होती रही है। तो एग्जांपल हो जाए कि इसका सियासी मतलब ज्यादा ना निकाला जाए। पर अब अगर हम कहें कि आफ्टर जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर हम कहें कि अब वो जो पार्टी बाहर हो, तो कि मैं मीटिंग करेंगे, पर एक बैक चैनल मीटिंग की उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं कभी अगर हम कहें कि कृषि मंत्री के पास नहीं गया, मैं अगर मैं गृह मंत्री के पास गया, ताकि एक बैक चैनल मीटिंग, एक बैक चैनल रास्ता निकाला जा सके कि एक, अगर वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एक मीडिएटर बन सके कि किसी तरीके से कृषि कानूनों को लेके जो इतनी संघर्ष चल रहा है उसे एक हल निकाला जा सके, इसको लेके वो डिस्कस करने गया। इसी में उनका कल का दौरा भी है। उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि अलायंस की बात से वो सीधे तौर पे मना कर चुके, मैं अलायंस किसी से नहीं करूंगा, सीट शेयरिंग में लोगों के साथ खड़ा हूं और सीट शेयरिंग में मैं हमेशा से ही रेडी हूं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अकाली दल के जो नेता अलग हो चुके हैं। उन्होंने एक चीज बार बार स्पेसिफाई की, अकाली दल के साथ कोई बातचीत उनकी नहीं रहने वाली है। अकाली दल को जो लोग छोड़ चुके हैं उनका वो पूरी तरह से स्वागत करते हैं, चाहे वो ढींसा हो जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, चाहे अन्य नेता हो, ये बात की गई है उनकी तरफ से। पर अकाली दल से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहने वाला। अब सवाल ये उठता है कि बार बार ये बात की जा रही है कि क्या कृषि कानूनों का वो कोई हल निकालने की कोशिश करें, तो उन्होंने सीधे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और अगर हल निकलता है तो जरूर हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम चर्चा के लिए। सो अमित साडे नाल जुड़े सन जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उठाए गए सवालों के उत्ते जो जवाब दिते गए ने उन्हां दे बारे चर्चा कर रहे सी।